سلطان صلاح الدین ایوبی نے یہودی عالموں کو بلکہ تمام یہودیوں کو اور مسلمانوں کو ایک کھلے میدان میں جمع ہونے کا کہا تھا۔ ظہر کی نماز ہو گئی، وہاں پہ پورا جو قصبہ تھا جنیبہ کا وہ امڈ آیا۔ یہودی اپنے ساتھ ایک پلہ ہوا اور خوبصورت رنگ کا اور سیاڑا سور لائے تھے، خنزیر لائے تھے۔ سلطان نے اس خنزیر کے سامنے ایک کتا، ایک گھوڑا، ایک بیل، اس کے علاوہ ایک بھینس، اس کے علاوہ جو ہے نا ایک دمبا اور ایک بکرا، یہ بندھوا دیے۔ اب سلطان نے یہودیوں کو کہا کہ اب آپ لوگوں نے غور سے دیکھنا ہے۔ سارا مجمع متوجہ ہو گیا۔ غلاظت جس کا پہلے بندوبست ہو چکا تھا، جس میں بڑی مقدار انسانی پاخانے کی تھی اور دوسرے جانوروں کی بھی غلاظت تھی، وہ ساری غلاظت منہ لپیٹ کے سلطان کے ہرکارے ایک ایک جانور کے پاس لے کر گئے۔ کتے کے پاس، گدھے کے پاس، گھوڑے کے پاس، جتنے بھی جانور تھے، کسی نے لفٹ نہیں کرائی۔ پھر وہ غلاظت یہودیوں کے سور کے سامنے رکھی گئی۔ یہودی اس کا پیٹ اچھی طرح بھر کے لائے تھے، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ سلطان کچھ ایسا کام کریں گے۔ بہرحال ان کے کیے کرائے پر پانی پھر گیا جب ان کے سیاڑے خنزیر نے چپٹ چپٹ وہ ساری غلاظت چند منٹوں میں چاٹ ڈالی اور ختم کر ڈالی۔ مجمع میں کئی لوگوں کو ابکائیاں یعنی الٹیاں آنا شروع ہو گئی، بلکہ مورخین لکھتے ہیں کہ جو صاف ستھرے اور عالم یہودی تھے ان کو بھی الٹیاں آنا شروع ہو گئی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے مسکرا کر کہا، کیا کہتے ہو؟ کیا خیال ہے تم لوگوں کا؟ اس پہ جو چربی بنتی ہے وہ کس چیز کی بنتی ہے؟ اس کا جو موٹا گوشت ہوتا ہے وہ کس چیز کا بنتا ہے؟ پھر سلطان مزید کہتے ہیں کہ یہ قدرت کے ابتدائی پلان میں شامل ہی نہیں تھا۔ یہ خنزیر، سارے جانور ایک مصلحت کے تحت پیدا ہوئے، گھوڑا، کتا، بلی، سارے، یہ پلان میں شامل نہیں تھا۔ پھر سلطان نے پورے مجمع کو خاموش کرایا اور سلطان نے بولنا شروع کیا کہ جب نوح علیہ السلام کی بیڑی پر، کشتی پر ہزاروں مخلوق جمع ہو گئی اور کشتی رواں ہوئی تو اب ہر کسی نے پاخانہ تو کرنا تھا۔ باہر سیلاب تھا، بارش تھی، لوگوں نے پاخانہ کیا۔ اب لوگوں کا جینا دوبر ہو گیا۔ لوگ نوح علیہ السلام کے پاس بھاگتے ہوئے آئے کہ یہ کہاں پہ پھنسا دیا ہے۔ نوح علیہ السلام نے اکیلے میں دعا کی رب کریم سے کہ یہ مسئلہ پیدا ہو گیا ہے۔ سلطان فرماتے ہیں کہ اسی وقت ہاتھی کی دم سے نر خنزیر اور مادہ خنزیر پیدا کیے گئے۔ وہ پوری کشتی میں پھرتے رہتے اور لوگوں کی غلاظتیں کھاتے۔ 2 دن میں یہ مسئلہ نوح علیہ السلام کا حل ہو گیا۔ یہودی مزید حیران۔ سلطان کہتے ہیں نہیں، ابھی اور سنو، یہ دنیا کا واحد جانور ہے جو اپنی مادہ سے جنسی تعلق قائم کرتا ہے، اور جب دوسرے خنزیر آ کر اس سے جنسی تعلق قائم کرتے ہیں تو یہ لطف اندوز ہوتا ہے، یہ خوش ہوتا ہے، اس کی کوئی عزت نفس نہیں ہے، اس میں کوئی غیرت نام کی چیز نہیں ہے، نہ اس میں بہن کی پہچان ہے، نہ ماں کی، نہ بیوی کی۔ اور یہ ایک مادہ خنزیر وہ جنسی تعلق کے لیے کھڑی ہو جاتی ہے اور پیچھے ایک لائن ہوتی ہے، اس میں کوئی تمیز نہیں ہوتی رشتہ داری کی، اور یہ انجوائے کرتا ہے۔ اب ویسے میرا سوال ہے، کئی لوگوں نے اللہ معاف کرے سنا ہوگا یا دیکھا ہوگا پورن موویز کے بارے میں، وہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ سلطان صلاح الدین کی منطق کے مطابق
वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे कौन सा रिश्ता या कौन सा ताल्लुक बचा हुआ है, और ये तो पूरी दुनिया में इंजॉय करते हैं। कोई यानी इसमें वो नहीं है, क्योंकि ये दबा के ये खाते हैं और इनकी आंखों पे चर्बी आ जाती है। यहूदी आलिम कहते हैं सुल्तान को कि आज समझ आई है कि ये जो शरीयत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, ये बग़ैर किसी मंतक के नहीं है, ये बग़ैर किसी अकल के नहीं है, ये अंधी तकलीद नहीं है। आज हमने अपनी आँखों से देख लिया। उस वक्त के मुर्रिखीन ये बयान करते हैं कि 30,000 यहूदी जो पढ़े लिखे थे, 30,000 यहूदियों ने सिर्फ इस वाक़े पर सुल्तान के हाथ पर कलमा पढ़ा। 30,000 यहूदियों ने। ज़ाहिर है जो सख्त दिल थे या जिनके दिलों पे मोहर लगी हुई थी, अभी भी आप देख लें एक नाजायज़ रियासत के यहूदी वो क्या कर रहे हैं, ये आपके सामने, ये हर कौम में होते हैं, हर कबीले में होते हैं, हर मज़हब में होते हैं। अब देखें ना, जो लोग फ़लस्तीनियों की मदद करने जा रहे थे वो कोई सारे मुसलमान थोड़े ही थे, वो उनमें नेल्सन मंडेला का जो है ना पोता शामिल था, यानी दादा कितना अजीम था और उसका पोता भी उसमें शामिल था। तो ये तो हर कौम में होते हैं। बहरहाल 30,000 यहूदी जो है वहाँ पे इस्लाम कबूल कर लेते हैं और वो खुद ऐलान करते हैं उस वक्त कि हम बाज़ार में पहले ये धोखा देते थे मुसलमानों को, दुम्बे में मुसलमानों को बकरों में जो है ना वो सूअर का गोश्त मिलाकर देते थे, हम उससे भी तौबा करते हैं और इसकी तजारत से भी तौबा करते हैं और आइंदा जो है वो यहाँ पे इसका कारोबार नहीं होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग जानते होंगे कि आज 4 अक्टूबर 2025 है और दिन है हफ्ते का। मेरे मोअज़्ज़िज़ व्यूअर से एक गुजारिश है, जो नए व्यूअर्स होते हैं ना, तो उनसे इल्तमास है कि कहानी अगर उनको समझ ना आए, वाक़या समझ ना आए, तो पूरा वाक़या समझने के लिए उससे पिछले वाला वीलॉग, यानी जो लेटेस्ट वीलॉग होता है ना, इससे पिछले वाला वीलॉग देख लिया करें ताकि कनेक्शन जुड़ जाए और आपके इल्म में इजाफा हो और आपको पूरा वाक़या जो है वो समझ जाए। चंद ताज़ा तरीन खबरें हैं और एक हल्का फुल्का वीलॉग है, पाकिस्तान की सूरत हाल है। लेकिन उससे पहले फॉर्म 47 का जो वज़ीर आज़म है, जाली है, नकली है, चपड़ासी है, अर्दली है, उसने कहा था कि मैं जापान गया तो मुझे आवाज़ आई, मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि ये एहतजाज कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, एहतजाज भी कर रहे हैं, और इस निज़ाम को बनाने वालों पर, इस निज़ाम के डायरेक्टरों पर, इस निज़ाम के प्रोड्यूसरों पर, जो इस निज़ाम को तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं, उन पर आपने थू थू थू, हम यही कर सकते हैं और आप जो है वो यही कर दें, क्योंकि इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। हमने रोगनी नान खाने हैं, वलीमों पे जाना है, और बाज़ दफ़ा वलीमों पे जो है ना वो खाते खाते, हालांकि वलीमा पराया होता है, पेट अपना होता है, लेकिन हम लीक भी हो जाते हैं। मैंने अपनी आँखों से देखा है। इसके अलावा आपसे गुजारिश कि अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल पे आप क़याम करें, आपको मज़ा आएगा इंशाअल्लाह ताला, खबरें भी आपको मिलेंगी। और अगर आप सब्सक्राइबर हैं तो लाइक का बटन दबा दिया करें। व्यूज़ ज़्यादा होते हैं और लाइक्स कम होते हैं, आपको भूल जाता है। और प्यारा सा कमेंट कर दें और हमारे पैगाम को फैलाएं। और आखिरी जो गुजारिश है कि कोशिश किया करें हत्तुल मकदूर, जब आप क्लिक कर दें तो वीडियो को जो है वो पूरा समात फरमाया करें। चन्नन बीबी से आप वाकिफ़ हैं? चन्नन बीबी से ये आपको दिलचस्प वाक़या सुनाना है। पूरी पाकिस्तान की स्टोरी इसमें शामिल है। चन्नन बीबी जो है ना वो एक खातून थी, पता नहीं आप जिंदा हैं या मर गई हैं। ये नवाज शरीफ की जो वालदा मोहतरमा थी जिनका इंतकाल हो गया, उनकी मालिश करती थी।
यानी वो जो देग चखी जाती है ना चमचे से, नमक मीठा चम्मच से चखा जाता है, तो अब देख चख लें। वो मालिश करती थी, मसाज करती थी नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और अब्बास शरीफ की वालदा का। ये बात अहम नहीं है, ठीक है, अच्छी बात है, बुजुर्ग थी, लेकिन अहम बात यह है कि पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड से उसकी तनख्वाह आती थी। चांद सिफारिश जो करता हमारी, देता वो तुमको बता। आगे मुझे नहीं आता, गाना बड़ा अच्छा है। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड उसकी तनख्वाह देता था 45,000 रुपया। ये लाहौर, ये कमी, वो अपनी माँ वाली जो मालशी थी उसकी तनख्वाह जेब से नहीं देते थे। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड से 25,000 चन्नन बीबी की तनख्वाह लगी हुई थी। होने दे आओ। 28 नवंबर 2025 ये हमारे लिए बड़ा भारी दिन है। मैं उस दिन बड़ा रोऊंगा, मैं उस दिन अपने बाल नोचूंगा, मैं अपना मुंह नोचूंगा और किसी को गले लगा के रोऊंगा, क्योंकि 28 नवंबर 2025 को हमारे फेवरेट, हमारे जो है ना वो पसंदीदा और हमारे जिनको शहादत की ख्वाहिश है, फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर हिलाल इम्तियाज मिलिट्री, वो रिटायर हो जाएंगे। और यकीन करें हमारा क्या बनेगा, पाकिस्तान का क्या बनेगा, लोगों का क्या बनेगा, लोग यतीम हो जाएंगे। बहरहाल ये अब करनी को कौन टाल सकता है। वो 28 नवंबर 2025 को रिटायर हो जाएंगे। मुझे पता है आपके भी आंखों में हल्के हल्के आंसू आ गए हैं, आपका गला भी रुंध गया है, लेकिन कोई क्या कर सकता है, जाने वालों ने जाना होता है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ दें किसी भी मुसीबत में तो वो 28 नवंबर 2025 को रिटायर हो जाएंगे और हम नए आर्मी चीफ को खुशामदीद कहेंगे। फलस्तीनियों को नजरअंदाज करके मसला किस तरह हल किया जा सकता है, ये कहना है व्लादिमीर पुतिन का, रशिया के प्रेसिडेंट था। उनको बताना है सर आप कम्युनिस्ट हैं, आप तो खुदा को भी नहीं मानते, इधर चोहों वाले हैं, इधर गगरों वाले हैं, इधर वो जो है ना इधर दाढ़ियां जिन्होंने रखी हुई हैं नुक्तों की तरह, उधर वो हैं, इधर जो है ना वो नमाजों वाले हैं, वो कहते हैं हल हो सकता है, आप कहते हैं हल नहीं हो सकता। बहरहाल ये व्लादिमीर पुतिन ने कहा है और शदीद हमला हुआ है जो है ना गज़ा पे, 60 अफराद शहीद हो गए हैं। लेकिन अब इसमें सिर्फ जो हमारा संगी है नेतन्याहू, सिर्फ वो नहीं है, ये जो तस्लीम करके आए हैं मुआहदे को इसमें शामिल हैं। इन 60 का जो खून है इनके हाथों पे भी लगा हुआ है। बहरहाल ये पुतिन कहते हैं। अमेरिका ने बहुत खतरनाक जो टॉम हॉक क्रूज मिसाइल हैं वो यूक्रेन को दिए हैं, और ये मिसाइल जब पहुंचे यूक्रेन तो रशिया बड़े खतरे में आ जाएगा और उसके जवाब में रशिया कोई बड़ा कदम उठा सकता है। ये अमेरिका ने दिए हैं। ये नौसरबाज, ये नौटंकी और ये फ्राडिया ये कहकर आया था कि मैं दुनिया में जंग बंद कराऊंगा, लेकिन बाद में इसको असले वाले मिले, असला बेचने वाले, उन्होंने कहा कि इंसान कत्ल होना बंद हो गए तो हम खाएंगे कहाँ से। गालिब दिल्ली छोड़ के जा रहे थे तो एक जो है ना वो दोस्त ने खत लिखा कि दिल्ली छोड़ के न जाए, तो गालिब ने जवाब दिया दिल्ली में रहें खाएंगे क्या। तो यानी वो कहते हैं अगर हम लोग कत्ल होना बंद हो गए तो हम खाएंगे कहाँ से। तो बहरहाल जी इस नौसरबाज ने ये क्रूज मिसाइल दिए हैं यूक्रेन को कि रशिया का मुकाबला करे। उसके बाद इदारा शुमारियात इसने खुशखबरी सुनाई है कि 19 अशिया की कीमतों में इजाफा हो गया है पेट्रोल और डीजल की वजह से। ठीक है जी, आपने बता दिया, आपकी मेहरबानी। हम 78 साल से यही सुन रहे हैं, जो चीज़ एक दफ़ा ऊपर गई वो नीचे कभी नहीं आई, लेकिन आप हमें गैरत दिलाते रहें, आप हमें ठुड्डे मारते रहें, आप हमें ठोकरें मारते रहें, हमने कुछ नहीं करना, बढ़ती रहे। उसके बाद अगली खबर सुने, पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी टेक्सटाइल इंडस्ट्री। आप जानते हैं इमरान खान के दौर में स्किल्ड वर्कर्स नहीं मिलते थे, 3-3 शिफ्टें लगानी पड़ती थी, वो बहरान का शिकार हो गई है और 11.1% बरामदात में कमी हो गई है और लाखों लोगों को घर भेज दिया गया है। ये पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा बरामदात करने वाला शोबा है, उसमें 11.1% की कमी आ गई है। वो कहते हैं कि लागत इतनी ज़्यादा है कि अब हम माल तैयार नहीं कर सकते, अगर माल तैयार करें तो हमें नुकसान होता है। उसके बाद जी ये बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है कि अमीर मुत्तकी ये वज़ीर ख़ारजा हैं अफ़गानिस्तान के। आप जानते हैं ये 9 अक्टूबर को हिस्ट्री में पहली दफ़ा भारत का दौरा करने जा रहे हैं। अब आप डॉट कनेक्टिंग कर लें कि खित्ते में क्या हुआ है। हमारी अमेरिका नवाज पॉलिसी अब बच्चे देना शुरू हुई है, तो वो जा रहे हैं जो है वो
इंडिया और इतलात हैं कि बॉर्डर पे पाकिस्तान और अफगानिस्तान में झड़प भी हुई है। आपने याद रखना है बग्राम एयरपोर्ट और बकौल डॉक्टर आयशा सिद्दीका वो हम जंग लड़ेंगे, अमेरिका पीछे होगा और हम बग्राम लेकर देंगे। अगली खबर ये है कि ट्रंप ने धमकी दी है कि इतवार तक जो है ना वो फ़लस्तीनी गज़ा को खाली कर दें, वरना उसके बाद वो कुछ होगा जो दुनिया में पहले कभी नहीं होगा, कभी नहीं हुआ। अब फ़लस्तीनी कहाँ जाए ये कोई नहीं बता रहा, क्योंकि मुसलमान ममालिक वो ट्रंप से थपकी लेने के बाद वो अपने अपने मुल्कों को रवाना हो चुके हैं। तो ट्रंप ने कहा कि गज़ा को खाली किया जाए, गज़ा को कॉलोनी बनाना है, वहाँ पे ट्रंप टावर बनेगा, वहाँ पे स्टूडियो बनेंगे, वहाँ पे कैसीनो बनेंगे, जुआ खाने बनेंगे, इसके अलावा वहाँ पे टेबल वाइफ्स होंगी, इसके अलावा वहाँ पे कुबा खाने बनेंगे। ये इनका प्लान है, एक ऊपर वाले का भी प्लान है, ये इनका प्लान है कि इसको कॉलोनी बनाया जाए और मुसलमान हुक्मरान इसमें बराबर के शरीक हैं। उसके बाद राजनाथ सिंह ये वज़ीर दिफा हैं इंडिया के, और इन्होंने कहा है कि हम पाकिस्तान का जोग्राफिया तब्दील कर देंगे हमला करके। करें ना राजनाथ साहब, करें ना प्लीज़, शो स्वीट। हम आपस में जितने भी लड़ें, आपकी शलवारें उतारने में और आपकी पैंटें उतारने में हम ज़रा भी कमी नहीं करेंगे। ये 1971 नहीं है, जनरेशन जी 60% जहाँ पे नौजवान हैं। आप करें ना जोग्राफिया तब्दील। हमने तो अपनी फ़ौज पे और अपने हुक्मरानों पे आश्रय नहीं करना, कौम आपको बता देगी। आप जोग्राफिया तब्दील करें, शो स्वीट करें नजर आके। उसके बाद अगली खबर है मुख्यमंत्री मलका पंजाब, आप जानती हैं इनकी गाड़ी के टायर आए हैं 2 करोड़ और 70 लाख। मानेंगे 2 करोड़ और 70 लाख। 2 करोड़ में कम से कम जो है ना 10-20 गाड़ियां आ सकती हैं। इसके टायर तब्दील हुए हैं 2 करोड़ 70 लाख में। अब मैं जो उधर आपको खबर सुनाता हूं वो सुने और सर धुने। कश्मीरी जीत गए, मुजाहमत जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। आज आपने कमेंट्स की बारिश करनी है। मुजाहमत जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, कश्मीरी जिंदाबाद। आपने ये यहाँ पे एक कर्नल फाइक थे, ये कसाई के नाम से मशहूर थे, इनको तरक्की दी गई, इनको ब्रिगेडियर बनाया गया। लाहौर में जो कुछ हुआ 9 मई पे छापे, डांगा, सोटे, दरवाजे तोड़ना, जो है ना औरतों को घसीटना, वो जो स्वाब दारैन था वो कर्नल फाइक के हिस्से में आया। बहरहाल इसको ऐसी जगह पे कैंसर होगा जहाँ ये डॉक्टर को भी नहीं दिखा सकेगा कि मुझे फलां जगह पे कैंसर, क्योंकि आप CMH जाए और MS जाए ऑफिसर वार्ड में तो ये सारे पड़े हैं, कोई बोल नहीं सकता, कोई जो है ना वो बड़ा पेशाब बेड पे कर रहा है, किसी की डेड बॉडी लेने घर वाले नहीं आते, वो यही होते हैं। बहरहाल ब्रिगेडियर फाइक को भेजा गया कश्मीर में कि इनको सोटे मारो, डंडे मारो, क्योंकि वहाँ भी 78 साल से इक़्तिदार कायम है। कश्मीरियों ने वो मार चाड़ी, फितरत के मकासिद की करता है निगेबानी, या मर्दे सहराई या मर्दे कोहिस्तानी, ये यही करते हैं। उन्होंने वो मार चाड़ी, 38 मुतालबात थे, 42 मुतालबात बनवा लिए उन दुकानदारों ने, उन आम लोगों ने, और पाकिस्तानियों को बार बार ताने दिए, खाओ मार इनसे, खाओ सोटे इनसे, खाओ डंडे इनसे, और चुप करके जो है ना हम तो इंसान हैं। कश्मीरियों ने कहा हम इंसान हैं, तुम लोग डंगर हो, तुम लोग जो है ना भेड़ें हो, बकरियां हो, तुम लोग इनकी मार खाओ, हम नहीं खाते। 38 मुतालबात थे, 42 मुतालबात उन्होंने मंजूर करवाए, 12 सीटें बढ़ गईं। अब वो 12 मुहाजिरीन वो वज़ीर आज़म के इंतखाब में वो कोई हिस्सा नहीं लेंगे, वो अलामती होंगे। वो जो 34 वजारतें थीं वो 20 तक आ गईं, 40 जो ब्यूरोक्रेट थे वो 20 तक आ गए। और आपको पता है पूरे कश्मीर में MRI मशीन नहीं थी, आपको पता है पूरे कश्मीर में CT स्कैन नहीं था। अब इन्होंने कहा है कि देंगे हर ज़िले में। 2025 में पूरे कश्मीर में 50 लाख आबादी में कोई CT स्कैन मशीन, कोई MRI नहीं थी। इधर पिंडी में जगह जगह पे डॉक्टरों ने रखी हुई है, वहाँ नहीं थी, अंदाजा करें। और 2 करोड़ और 70 लाख के जो है ना वो टायर आए हैं। ये हाल कर रहे हैं ये मुल्क का, हर जगह पे यही कर रहे हैं।
बहरहाल जी, कश्मीरी जिंदाबाद। एक बार फिर उन्होंने सारे मुतालबात बनवा लिए हैं जो उनके शहीद हुए हैं। उन्होंने कहा जिस तरह फौजी शहीद होता है वो एजाज़ दिया जाएगा, उतना मुआवजा दिया जाएगा, उनके घर से किसी को जो है ना वो सरकारी नौकरी दी जाएगी। तब उन्होंने कंप्रोमाइज़ किया। 2 मज़ीद बोर्ड्स बनेंगे वहाँ पे, तालीमी बोर्ड्स जो फेडरल बोर्ड के साथ एफिलिएटेड होंगे। वहाँ पे सुरंगें बनेंगी, वहाँ पे रोड्स बनेंगे। 15 दिन बाद इजलास होगा। ये है लोगों की ताकत, ये है लोगों का मुल्क, ये है लोगों की मिल्कियत। हर चीज़ लोगों की है। पहाड़ लोगों के हैं, मादनियात लोगों की हैं, सड़कें लोगों की हैं, मुल्क लोगों का है। ये कौन होते हैं? सरकारी मुलाजिम जो लोगों को डांगे मारें, लोगों को सोटे मारे। बहरहाल जी, उन्होंने वो जीत गए हैं। वो 40 लाख थे टोटल कश्मीरी, तकरीबन 10 लाख रोडों पे आए। हम 25 करोड़ हैं, लेकिन आपको पता है गैरत का ना कोई टीका मिलता है ना कोई गोली मिलती है। उसके बाद पसनी में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मुशर्रफ ने भी दिया था, पसनी में फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक अड्डा ऑफर किया गया अमेरिका को। अंदाजा करें ये कौन है जो मुल्क का सौदा कर रहे हैं? कौन है? नदीम अफजल चंद कहता है कि आप लोग कहते हैं इन्होंने 17 सीटें जीती, 17 सीटें जीती। मुझे 10 सीटें गिनवा दें, 10 सीटें जो नून लीग जीती हो। नदीम अफजल चंद कहता है 10 सीटें गिनवा दें, और ये सौदे मार रहे हैं। ये फाइनेंशियल टाइम्स कहता है कि फील्ड मार्शल ने ऑफर किया है अमेरिका को कि ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह पसनी में है। उधर ईरान है, उधर चाइना है, उधर गवादर है। मद्दा कड्डो अर्शद खड़ो, असन तो चले जाना है। मैं तो रिटायर थी बनाया तो अमरीका, मैं रिटायर थी बनाया मैं उड़ाइयाँ बनाए। यानी हमने पाकिस्तान को इस काबिल छोड़ा है कि यहाँ पे रहा जाए। हम तो जो ही रिटायर होते हैं सीधे ऑस्ट्रेलिया, सीधे अमरीका। वो रात को, आधी रात को, वो एक औरत मदीना की गली में उमर को मिल गई और हजरत उमर ने फरमाया कि तुम्हें डर नहीं लगता? तो उस औरत ने कहा या तो तुम खुद मरो या उमर मर गया है। कौन है जो मुझे हाथ लगाए उमर के होते हुए? हाय 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 हाय, वो खुली आस्तीनों वाले, वो मर्दे सहराई। ये कहते हैं हमने पाकिस्तान का वो हशर कर दिया है। जो ही हम रिटायर होते हैं, 7 समंदर पार मैं तेरे पीछे पीछे आ गई, मैं तेरे पीछे पीछे। एक जाता है उसके पीछे दूसरा, दूसरा जाता है उसके पीछे तीसरा। पता कर लें कितने आर्मी चीफ यहाँ रहते हैं। ये पाकिस्तान को इस काबिल ही नहीं छोड़ते और उधर सौदे मार रहे हैं। अच्छा आगे सुनो, एक और कहानी सुनो। ये तारीख है 1 फरवरी, छुट्टी का दिन है, ठीक है जी। वजीर कानून खत लिखता है जो है ना वो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट उस पर सोचता है। वो खत लिखता है याया अफरीदी को, याया अफरीदी खत लिखता है प्राइम मिनिस्टर को, प्राइम मिनिस्टर फिर खत लिखता है वजारत कानून को, वजारत कानून फिर खत लिखता है प्राइम मिनिस्टर को, प्राइम मिनिस्टर उस पर मदद, उस पर जो है ना मशवरा करके फिर वो खत भिजवाता है वजारत कानून को, वजारत कानून वो खत भिजवाती है सदर जरदारी को, सदर जरदारी उस दिन नोटिफिकेशन कर देता है। ये छुट्टी है 1 फरवरी, निकाल लें, हफ्ते का दिन है। पिछला जो है ना कैलेंडर निकाल लें, जजों को तब्दील कर दें। सरफराज डोगर को ले आओ, डोगरे को ले आओ लाहौर से। ये जजेस ट्रांसफर केस में 1 दिन में हुआ है, 1 दिन में। कहां पर रह रहे हैं, कहां रह रहे हैं आप? कमाल करते हैं पांडे जी। ये मुल्क है पाकिस्तान। इमरान खान ने असेंबली तोड़ी, आरिफ अलवी को कहा असेंबली तोड़ दो, आरिफ अलवी ने असेंबली तोड़ दी। वो जो है ना अता मोहम्मद बंदयाल वो धोती संभालते हुए आ गया। वो कहते हैं ये मैली फाइटिंग है, आपकी टेंशन ही ठीक नहीं थी, आपने क्यों असेंबली तोड़ी? ये क्या है, 1 दिन में जज तब्दील कर दिए। सरफराज डोगरा आ गया, आदम खान आ गया, पपेट आ गए, अपने किराए के टिट्टू आ गए। ये 1 दिन में हुआ है। दोबारा वीडियो सुननी है, कहाँ कहाँ से खत गया। ये प्रेम पत्र था, आई लव यू था या क्या था? ये भागता फिर रहा है बंदा, खत दे रहा है और ऊपर गौर भी कर रहे हैं। ये हो रहा है यहाँ पे अपने मकसद के लिए। और आखिरी आपको लतीफ़े सुनाने हैं, जिसने 2 करोड़ जो है ना वो और 77 लाख के 2 करोड़ और 70 लाख के टायर डलवाए हैं। इसके लतीफ़े जारी हैं। ये मेयर शराफत ज़हारी है, मेरा पंजाब, मेरे पंजाबी, मेरे लोग। ओ भाई, तुम्हें लोगों ने वोट ही नहीं दिए। मेयर शराफत, तुम्हें लोग अपना नुमाइंदे नहीं समझते। मेरे पास चार्जर नहीं है, शो स्वीट चार्जर नहीं है मेरे पास। लोगों की बसों में है, मेरे पास चार्जर नहीं है। ये क्या समझते हैं लोगों को?
موتیے کے وزن پہ ایک اور لفظ ہے، میں کہنا نہیں چاہتا۔ 2025 میں یہ کیا سمجھتے ہیں؟ میرے پاس چارجر نہیں ہے، حالانکہ مہران میں بھی ہوتا ہے، مہران میں بھی لگا لیتے ہیں ہم سگریٹ والی جگہ پہ۔ میرے پاس وائی فائی نہیں ہے، لوگوں کے پاس ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ کس سن میں رہتے ہیں؟ پھر رضی دادا کی وکالت، وہ جس کا منہ بھڑووں کی طرح رضی دادا کا، گٹکا کھا کھا کے، جس کا صرف ایک ہنر ہے پی ٹی آئی کو گالیاں دینا، جس کا ایک ہنر ہے عمران خان کو چرسی کہنا، اس کو فالو کرتی ہیں جنابہ، کیونکہ گالیاں سن کے ذرا لطف اندوز ہوتا ہے بندہ، ننگی گالیاں سن کے پڑھ کے ذرا بندہ لطف اندوز ہوتا ہے۔ اس کا یہ ہنر ہے رضی دادا کا۔ اور اس پہ کہا جی کہ جس نے وہ سندھیوں کو بندر کہا تھا، یہ بندر کی طرح اچھلتے ہیں، رضی دادا نے، یہ رضی دادا کی وکالت کر رہی ہے۔ بہرحال اس کے پاس وائی فائی بھی نہیں ہے۔ اگر آپ پیکج وہ جس طرح وہ کوئی سائمہ ہوتی ہے، مانگتی ہے کہ میری ماں ہسپتال میں داخل ہے، 25 روپے اس کو اگر آپ کرا دیں، لوڈ کرا دیں، اس کے پاس نیٹ بھی نہیں ہے، اس کے پاس چارجر بھی نہیں ہے۔ اور کل بتایا تھا آپ کو کہ چکوال کے ایک دورے پر ایک دن کے 5 کروڑ روپیہ خرچ آیا ہے، 2 کروڑ اور 70 لاکھ روپیہ یہ جو ہے نا اس پہ ٹائروں پہ خرچ آیا ہے۔ یہ ان کو بتایا کرے جو ان کے وہ پٹواری ہیں، جو کھوتا کھا کھا کے بوٹتے ہیں، جن کو یہ چاول کھلاتے ہیں اور جن کو یہ قیمے والے نان کھلاتے ہیں، یہ ان کو بتایا کریں کہ میرے پاس وائی فائی نہیں ہے، میرے پاس چارجر نہیں ہے۔ اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔